सबको सादर नमस्ते। रमेश गुप्ता मेरा नाम है। आई एम been a part of the Arya Samaj for a long time, and I will take this opportunity to spend a few minutes about Atma ke kya gun hai. Pretty much preaching to choir. Most of you are already well aware of it. I try to put together the different scriptures, what they say about the Atma. So I'll start with this. पाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत् चक्षुषश्नोत्य कर्ण तवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम। ये उस परम पिता परमात्मा के गुण हैं। तो my next slide is a soul introduction. I'll may highlight it. Is this better? This is better. Okay. So, all right. So देखिए, इस ब्रह्मांड में तीन तत्व हैं. There are three elements: the God, the soul, and the nature. They did some excavations in Mohenjo-daro, Harappa. They found those seals. There are two birds sitting on a tree. And the mantra to prove that is in the bottom. Dwasuparna sayaja sakhaya sanam samanam raksham parishasva jate tayoranya pepalam swad vat nashnananyo abhichakshiti. That means there are two birds sitting on a tree. The tree is the nature. The two birds, one of them is the soul, which tastes the fruit. We are in this universe. We do things. And the God is just a drashta and gives the judgment. वो कर्म फल व्यवस्था के अनुसार वो फल देता है. So there are three entities. God is only one. Souls are infinite. Both entities are conscious beings and eternal. ये बात ध्यान देने की है. तो both God and soul, nobody creates souls. Both are there. आत्मा जो है न किसी का कारण है न किसी का कार्य है. It doesn't result in anything. It's there eternal. Soul never dies, nor a new one is created. You can't take a piece out of God. There is this concept of Advait that probably is, does not make any sense, because where there are qualities soul doesn't have of the God. If you take a piece of something, it should have those qualities. It doesn't. Now, there is always this question as to when does the conception begin? When does the life begin? So our scriptures clearly say when the soul enters the new body, it brings with it the sanchit karma based on both good and bad actions. An entry of soul in the body is the beginning of life. And when the soul departs, it assumed as death. But even this perception is pure ignorance, since soul never really dies. It simply gets attached and detached from a particular body. So this is the basic introduction. And as we go on, it will become clearer. So three entities: the God, Ishwar, Jiva, Prakriti. Since the soul is non-physical, it doesn't have any measurement. It's not a particular, and there are different Upanishads and Darshans. They all go on to dramatically describe that their soul is non-physical. How does it work though? It uses 24 tools for its interaction with the universe, or at least with the body. Those tools are man, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और माइंड, इंटेलेक्ट, चित्त एंड अहंकार. 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश. So these are the 24 tools, and fifth is Atma. So there are total of 25 things. So soul, anytime we do something, we need tools.
The soul being non-physical, it has to have these tools to connect with the body, make the body do things. Now, one thing very important, mind is both physical and non-physical, and is both sensory and motor. मन जो है, you think and act both. Now, दुख और सुख किसको होता है? It is the soul which feels the pain and pleasures of life, not the mind. कहते हैं ना मन में दुख हो रहा है. Mind is just tool for the soul. I read a book, Raymond Moody. He's a psychiatrist, life after life. He goes on and he interviewed people who had near-death experiences. And he suggested that people who were near death or we were thrown out of the vehicle and they came back, they could see that they are separate from their body. So, but this analysis is not perfect for Punarjanma, but it stops short of that, but it suggests that. So I think this is a book worth reading, Raymond Moody, Life After Life. It's one of the best sellers. Now, having given this introduction, I will give some of the documents of our scriptures, what it says about the soul. जैसे कठोपनिषद में उसको वल्ली बोलते हैं, उसको chapters को. So when this child Nachiketa was curious, and when finally he insisted कि उसको बताया जाए कि आखिर ये कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो in that reference Acharya Yam explains the form of souls as followed. न जायते म्रियते व पिपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य, अजम जिसका जन्म नहीं होता है, शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीर. यही बात गीता में कही है, वांसांसि जीर्णानि यथा व्याह, in that sense. And similar month is there in the Gita also shlok. The meaning is that soul is a conscious being and is neither born nor dies. So the soul is neither an act nor a reason for anything or anyone. So न किसी का कार्य है न कारण है. इसी तरह से परमात्मा न किसी का कार्य है न कारण है. And soul is ever present, does not die, it doesn't perish with the body. So this is what Kathopanishad says in this chapter. Shvetashwara Upanishad is amazing. You read it, ऐसा लगता है उस परमात्मा से बातें हो रही हैं जब कठोपनिषद पढ़ो तो उसके जो एक चैप्टर है उसमें जो 3 मंत्र हैं जो उपनिषद को मंत्र बोलते हैं, बाकी गीता के श्लोक हैं, रामायण के श्लोक हैं, उपनिषदों तक उनको मंत्र बोलते हैं. देखिए आप कितना अच्छा डिस्क्राइब किया है श्वेताश्वतर उपनिषद के दिस चैप्टर नंबर 3 जो नंबर 7 मंत्र है उसमें अंगुष्ठ मात्र एंड रवि तुल्य रूप है. यू डोंट नीड टू लुक एट द रेस्ट ऑफ द मंत्र, इज कॉम्प्लिकेटेड, बट अंगुष्ठ मात्र, अंगूठा होता है ना अपना अंगूठा, तो गॉड इज लाइक, एंड ऑल्सो ईश्वर को भी कहा है अंगुष्ठ मात्र. इस तरह से आत्मा को भी कहा है. जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अंगूठा पेरेंट का अंगूठा पकड़ के चलता है तो वो समझता है मैंने पूरे पेरेंट को पकड़ रखा है. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि द सोल लिव्स इन द हृदय प्रदेश. अब हृदय प्रदेश इज नॉट ए फिजिकल हार्ट, बट इन दैट जनरल सेंस, इन दैट एरिया सोल लिव्स. सोल कितने हैं बॉडी में? एक. कहाँ रहता है आत्मा? हृदय प्रदेश जिसको बोलते हैं. तो since it lives in that in a non-physical form, it is compared to the thumb in the body. लेकिन उसका नेक्स्ट पीस क्या है? रवि तुल्य रूप है. सूर्य तो बहुत बड़ा होता है. Why? If it is so tiny, how can it be Ravi? Because once it is connected to the मन और प्राण, शरीर को चलाता है, जिस शरीर में होता है उसको पूरा चलाता है, दुनिया से इंटरेक्ट करता है.
इसलिए वो बहुत बड़ा भी उसको कहा गया, लाइक ए सन. So the soul is non-physical and considered smallest and also the biggest. Now, next मंत्र देखिए आप इसमें, वो कहते हैं कि एक बाल के 100 टुकड़े करो और उसके 100 टुकड़े करो और उसके 100 टुकड़े करो. It's just a dramatic explanation. Soul is non-physical. So soul is smaller than smallest of the smallest of the smallest. एक उसमें आता है श्लोक, सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्य, लेकिन वो परमात्मा के लिए है, but some of those fits in the soul as well. So soul is again being non-physical, it's infinite now. But the beauty is, despite being so tiny or non-physical, भागो जीव स विज्ञ, यानी वो जीव जो है उसके लिए एक्ट करता है वो. बिकॉज जीव ओनली वर्क्स, जब शरीर में जब आत्मा होती है तब मनुष्य में जान होती है, किसी भी प्राणी में जान होती है. आत्मा चली गई कुछ नहीं, जैसे बल्ब है, बिजली नहीं आ रही तो बल्ब बेकार है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो मंत्र श्लोक है, ये मंत्र है नैव स्त्री कुमाने न. देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कम्स इन वेदर द सोल मेल और ए फीमेल. तो ये क्लियरली उपनिषद में बताया है कि सोल न मेल है न फीमेल है न इम्पोर्टेंट है. जिस शरीर में ये आत्मा जाती है उस शरीर की कैरेक्टरिस्टिक को अज्यूम कर लेती है. तो वी आर आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस हियर अबाउट द सोल. गीता क्या कहती है? एवरीवन नोज दिस. वासांसि जीर्णानि यथा व्यय. जिस तरह से पुराने कपड़े होके कपड़े हम बदलते हैं, उसी तरह से आत्मा शरीर पुराना होने पर बदलती है. तो नवानि देही, देही कौन है? आत्मा. देह देही, देही आत्मा है, देह शरीर को है. फिर दूसरा है नैनन चिंतन शस्ताने नहन दहते पावके. न आत्मा को, I'll send you this presentation, anybody who is interested. जाओ, न इसको हवा सुखा सकती है, न आग जला सकती है, न पानी की. दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन. जब फिजिकली नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान वो महामानव जो थे, उन्होंने किस तरह से अर्जुन को किस चैप्टर में बताया कि आत्मा अमर है, मरती नहीं है, तो क्यों शोक करता है? जो कुछ निश्चित होने वाला है, जो इस तरह से वो, इसकी ब्यूटी ऑफ इट. अब देखिए आप, एज ए फिजिशियन, व्हेन वी डिक्लेयर somebody is dead, लाइफ के साइंस देखते हैं ना, दर्शनों में देखिए कितना प्यारा न्याय दर्शन में दिया है. हाउ डू यू नो द पर्सन इज अलाइव और द सोल, दैट पर्टिकुलर जीव इज अलाइव? तो वो एक क्वेश्चन पूछा था, वन ऑफ आवर फेलोज एस्क्ड इन द हॉस्पिटल कि हमें परमात्मा ने जन्म दिया क्यों है? व्हाई आर वी हियर? दिस इज द आंसर. तो क्योंकि आत्मा के गुण है, कुछ ना कुछ करना ही होता. नोबडी कैन बी विदाउट डूइंग एनीथिंग एवर, एवरी सेकेंड. सोते हैं जब भी मन में कुछ नहीं चलता रहता है. तो देखिए आप, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति. यहाँ लिंग का मतलब पेनिस से नहीं है, लिंग का मतलब है चिन्ह, उसका साइन है, उसका है. आत्मा के क्या गुण है न्याय दर्शन के अनुसार? प्लीज लुक एट इट अगेन. इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख एंड डिजायर टू नो ज्ञानानि. आई राइट इट हियर. डिजायर, jealousy, effort, feeling of happiness, unhappiness and effort to acquire knowledge. कितना सिंपल न्याय दर्शन में कमाल का लिखा है कि ये आत्मा के गुण हैं. परमात्मा में ये गुण होते हैं क्या? नहीं. तो इस परमात्मा जो है निर्गुण भी है, सगुण भी है. आत्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है. निराकार अलग चीज है, निर्गुण अलग चीज है. गुण मीन्स क्वालिटीज, आकार मीन्स फॉर्म. ईश्वर निराकार है, आत्मा निराकार है, लेकिन इनके कुछ गुण पॉजिटिव हैं और कुछ नहीं है, बेस्ड ऑन वेदर इट इज आत्मा और परमात्मा. वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? देखिए आप,
It goes even further detail. देखिए, प्राण, अपान, निमेश, उन्मेष, जीवन, मन, गति, इंद्रिय, अंतर्विकारा, and goes further. सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, आत्मनो लिंगानि. अब क्या हुआ है देखिए आप. लेट्स लुक एट द पैराग्राफ जस्ट अबाउट दिस हिंदी. वन हु ब्रीथ्स ओपन्स एंड क्लोजेज आई. देखिए, एक होती है हमारी इंद्रियां जिससे हम देखते हैं, जैसे आंख है, मैं देख रहा हूं, इसके पीछे जो पावर है उसको वो क्या है, प्राण शक्ति उसकी है. और उसके पीछे क्या है, मन है. उसके पीछे क्या है, बुद्धि है. और उससे पीछे क्या है, आत्मा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय और विषय. दिस इज हाउ इट गोज. सो इन द रिवर्स ऑर्डर, विषय, प्राण, मन, then we have the बुद्धि, आत्मा और परमात्मा. इस तरह से this is how it goes. So anyway, the one who breathes, opens and closes eyes, is born, thinks and makes decisions, moves, has senses and body parts, and a feeling of desire, jealousy, make effort and works hard. वो क्या है, आत्मा के गुण हैं. These are the qualities of soul. परमात्मा के नहीं है गुण ये. Soul and God differences. A living being ceases to have this characteristic once the soul leaves. The soul has limited knowledge. मुझे पता नहीं है कि मेरे पीछे क्या है, परमात्मा को पता है. अगर परमात्मा का हम टुकड़ा होते तो पता होता. Soul stays in one place and is non-physical. Therefore, the size of soul is same in all beings. एक चींटी का और हाथी की आत्मा की साइज एक होती है. Soul is free to act. हम वो नहीं है. We are not robots, free program के भगवान करेगा जो होगी. That's a निष्कर्मता. We are free to act. But the fruits of action are resultant of the universal laws of supreme. परमात्मा भी नहीं बदल सकता. जो आपने किया है उदाहरण, कोई आप जाए, वो कहते हैं भगवान, किसी ने मर्डर कर दिया, कि आप, हे भगवान मुझे माफ कर दे, आई एम डूइंग कन्फेशन. इट डजंट वर्क दैट वे. उसका मिलेगा ही मिलेगा आपको फल, लेकिन आपके माफी मांगने से, करने से आपका बाद का जीवन सही होगा. Soul experiences happiness and unhappiness. God doesn't. Fate of the soul: after leaving the body, the soul can enter another body called birth, ye already mentioned, or remain moksha, or remain free for a certain period of time till the appropriate body is found, or attain moksha. ये अलग विषय है. मोक्ष का विषय सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ये सब कुछ है. All of this is there. तो ये आत्मा के गुण हैं और परमात्मा के गुण अलग हैं. कुछ ऐसे हैं, कुछ अलग हैं. And the next, a soul obtained the reward of karma in accordance with God's administration and gets glued to the chain of karma. अब क्या है कि मनुष्य का या किसी भी प्राणी का जब जन्म होता है तो वो कुछ कर्म लेके आता है. मैंने एक वर्ड मेंशन किया था इन द बिगिनिंग ऑफ माय टॉक, संचित कर्म. 2000, जैसे मान लो, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, पुट अ लिटिल शुगर, टेक ए लिटिल येलो क्वार्ट ऑफ दैट, पुट इनटू द नेक्स्ट ग्लास, नेक्स्ट 100वें ग्लास में ये पता नहीं चलेगा कि कहां से आया है. तो द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन हु इज बोर्न कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. एक तो जीन्स, the environment the person is born in. Somebody is born in Africa, India, here, it would be different, but sanchit karma. Soul, God's functions are to create, support and dissolve the creation. और soul का क्या है? Only within the body. फर्क हो गया ना ये. ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को चलाता है बेटा. Today we are new galaxies are being formed, but God manifestation
only a third of what is manifest is God's entire realm. आत्मा सिर्फ एक ही शरीर में रहता है. Soul obtains the rewards in terms of joy and pains in accordance with the dharma or contrary. अच्छा किया अच्छा होगा, बुरा किया बुरा होगा. तो ये कर्म फल व्यवस्था के हिसाब से इट कैन नॉट बी चेंज. और ये फाइनल स्लाइड है प्रोबेबली. relationship between individual soul and God is that of pervaded and pervading. ज्ञाता मतलब भोक्ता और भोग्य, देह और देही. Individual soul by nature is limited at a particular location. ये repetition है just to emphasize the point. God is on the other hand subtler than subtlest, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है. All knowing and all pervading. जैसे एक एग्जाम्पल दिया है सत्यार्थ प्रकाश में, जैसे लोहा है, लोहे के अंदर गर्मी जो है, बिजली है, वो दिखती नहीं है. तो लोहा is compared to the आत्मा and that power or the heat is compared to परमात्मा. Besides the pervading relationship, they possess relationship as servant master. Actually ईश्वर को हमेशा पिता कहा है, वो हमारा पिता है, वो हमारा कोई मालिक भी कहते हैं, सपोर्ट भी उसकी मिलती है. हम भक्त हैं, तू देव में पुजारी, एक बात होती है ना ये. वो राजा है, हम उसकी प्रजा हैं, वो पिता है, हम उसके पुत्र हैं. इस तरह से although the God pervades through an individual soul, it doesn't become performer of the karma. ईश्वर वो बताया था ना शुरू में, द्वा सुपर्णा सहजा सखाया, वो वाली बात है. A soul is inflicted with the rewards of karma because it executes them and could fall into the categories of dharma. अच्छे काम करेगा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, but ईश्वर निचखता नहीं है उन फलों को. तो ये फर्क है. तो मैंने वेरी ब्रीफ में आत्मा और परमात्मा के ये गुण बताए. और now I will open this to the questions, comments. All wise people are here. So स्क्रीन शेयर करना बंद करिए. स्टॉप स्क्रीन शेयर. एक शेयर, स्टॉप शेयर. हाँ अब ठीक है. So I think Dr. Gupta has to leave in about 5 minutes. So if you have any questions, you may ask him now. And after that, I will perform the Sandhya. किसके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क क्विकली. He may not have time to elaborate too much, but he can do it in a later lecture. डॉक्टर साहब प्रणाम. आपने जो थंब का उदाहरण दिया वो आपने आत्मा का साइज कहा? जी हाँ. ठीक. ये क्या है, कवि की भावना है. जो उपनिषद जो उन्होंने लिखा ना, अंगुष्ठ मात्र, that means small. Basically it's non-physical, but it says it's just a very ornamental comparison. अंगुष्ठ मात्र परमात्मा को भी कहा है, आत्मा को भी कहा है, दोनों को. जी ऐसा उदाहरण पहले भी मेरे सामने आया. जब वो तिलक लगाते हैं मस्तक पर, पहले अनामिका से बिंदु लगा करके और फिर इसी अंगुष्ठ को इतना करते हैं. तो वहां पर भी मैंने ये पूछा था, तो कहने लगे इतना इसलिए करते हैं, जो आपने कहा 1 इंच के लगभग ये अंगुष्ठ, ताकि ये आत्मा का साइज कहा गया है. वही मैं आपसे. Well, ये तो भावना है. I'm not sure. ऐसा है ना, हर धर्म में, हर डिनोमिनेशन में, over a period of time we have had rituals of different nature, signs of different nature in all of them, and then we try to explain them for a good reason, bad reason, but this is just one way. But essentially our scriptures don't state anything like that before the before 2500 years. None of those things were there. But this is all within last 2500 years. और ये जो scriptures सारे बताए, they all go beyond that, before that. Even दर्शन जो हैं, वो महाभारत के आसपास के, उपनिषद तो 5000 साल के पहले हैं ही हैं. इसे योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं,
श्री कृष्ण को 5000 और कुछ साल, तो उपनिषद उससे पुराने हैं। दर्शन कोई कहता है 1000 BC, 2000 BC, whatever, but yes, thank you. धन्यवाद। आप ये स्लाइड्स शेयर करेंगे? स्लाइड शेयर करना है। स्लाइड शेयर मैं उसमें डाल दूंगा, because he cannot put it in that. I will put it in the WhatsApp group. Thank you. Yeah. राज Thank जी you, के Bala sir. पास स्लाइड्स मैंने भेजी हैं, so kindly feel free to send whatever whosoever requests. ठीक है जी, अच्छा, thank चलिए you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. You found the Thank you. time to Thank you very have a busy practice, and you still found time to come here and give a talk. हाँ, ये सब्जेक्ट ऐसा है, दिस रिक्वायर्स अ लॉन्ग आवर्स। जो हमारे जो कथावाचक होते हैं, जो इस विषय पे इन पे बोलते हैं, दे वुड पॉन्डर ऑन दिस थिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स, एंड बहुत ही गूढ़ और गंभीर विषय है ये। तो पर I took a liberty to say a few words, explain. It was a nice presentation. Thank you. Thank you.